Hello, my dear friends. Welcome. Thank you so much for joining in for this session. I was really looking forward to having you people today with me because there's a very special topic that I have chosen today. The topic about which I'm going to talk about is real laws of God. Okay, friends, and what are the real laws of God is something which we definitely should know, isn't it? नाउ आप लोगों को शायद ये लगे कि हमें पता है what God thinks is right and what he thinks is wrong, या हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं, सही गलत की जानकारी है हमें, तो हमें पता है कि भगवान के नजरिए में क्या चीज सही है और क्या गलत है. बट एक्चुअली नो माय डियर फ्रेंड्स, there are so many things which we have registered, जिनके बारे में हमने जानकारी ली है through different sources. कुछ चीजें हमें हमारे बड़ों ने बताई, कुछ चीजें हमें प्रीस्ट से पता चली, कुछ और लर्नेड पीपल आर देयर जिन्होंने कुछ मैसेजेस स्प्रेड किए. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू जो भी नॉलेज मिली है वो मिली है. बट व्हाट इफ हमें गॉड का डायरेक्ट मैसेज मिल सके? What if the God directly communicates to us what he really wants from us? I think there is nothing better than that. And friend, ये real laws of God जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये wisdom मुझे कहाँ से मिली या इसके बारे में मुझे कहाँ से जानकारी मिली? Let me tell you, the things that are the messages, the information or knowledge or wisdom, whatever you may call it, that I'm going to share with you today is sourced from a book titled The Laws of the Spirit World. Now friends, ये एक book किसी भी और book की तरह नहीं है. This is a special book in itself. अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा insight देना चाहती हूँ, and for that I'll have to tell you who has written this book and how has this book been gotten written. इसको लिखा कैसे गया है? ये किसी रेगुलर ऑथर या फेमस राइटर ने नहीं लिखी है. इसे एक आप और मेरे जैसे आम इंसान ने लिखी है, एक हाउसवाइफ ने लिखी है. But in what circumstances? What led her to write such a powerful book? And friends, before I tell you all of that, I would like to tell you that this book has been a life-transforming book for me personally. This was the first spiritual book that I read, and that brought me into meditation, and I started to walk on this path of spirituality. So this is a very powerful, very liberating book, a must read. Now to come to the point, इसे लिखा किसने है? This book has been written by Khurshid Bhavnagri, एक सिंधी lady. There was a couple, Khurshid and Rumi. उनके दो बच्चे थे, दो boys, बेटे, जो एक 29 years का था और एक 30 years का. उन दोनों boys का नाम था Vipsi and Ratu. And these two boys were very crazy about motor vehicles, cars. And as they grew, they became, they had to set up a business. तो उन लोगों ने मोटर कार्स की एक सर्विस सेंटर और एक गैराज खोल लिया. तो सारा दिन वो उन्हीं कार्स वगैरह में ही डील करते थे और उनको बहुत पैशन था इस चीज का. तो उन लोगों ने एक जो भी मोटर व्हीकल्स की मोटर रैलीज होती थी वो उनमें बहुत पैशनेटली पार्टिसिपेट भी करते थे. तो इसी पैशन के चलते वो एक रैली में पार्टिसिपेट करने वाले थे इन आने वाले कुछ दिनों में. और उस रैली के पार्टिसिपेशन की प्रिपरेशन के लिए ये दोनों बॉयज एक टेस्ट ड्राइव पे निकल जाते हैं. एंड उस टेस्ट ड्राइव के दौरान जाने से पहले वो अपनी मदर को बोल के जाते हैं, अच्छे से हग बग करके जाते हैं, वेरी अनयूजुअल तरीके से गुड बाय करते हैं और बहुत लविंगली. मतलब उतना कभी उन्होंने जेस्चर्स एक्सप्रेस नहीं किया होता अपने जेस्चर्स से, बट द लास्ट टाइम दैट दे वर बिडिंग बाय टू देयर मदर, they did it really with heart. And उसके बाद next day a message comes कि इन दोनों boys की कार का
फिर एक एक्सीडेंट हो गया है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है पेरेंट्स को. द फादर रूमी goes to the site and he finds out कि वहाँ कार का जो the car is completely smashed into a tree. और वहाँ मौजूद लोग उन्हें बताते हैं कि हॉस्पिटल लेके जा चुके हैं डॉक्टर्स के, उनको ट्रीट कर रहे हैं. And when he reached the hospital, he got to know that the boys have passed away. वो दोनों बच्चे boys, Vipsi and Ratu, they passed away when they reached hospital. On the way उनकी डेथ हो गई होती है. अब ये आप इमेजिन कीजिए, किसी के दो जवान बच्चे एट द एज ऑफ 29 and 30 अगर मर जाएं तो उन पेरेंट्स की क्या हालत होगी. ये खबर लेके जब रूमी अपने घर वापस आते हैं, अपने घर की स्टेयर्स वो चढ़ नहीं पा रहे होते, इतने शैटर्ड होते हैं. पीछे उनकी वाइफ वेट कर रही होती है, ऐसा मैसेज आने पे हस्बैंड गए हैं, क्या हुआ क्या नहीं, बच्चों की कोई खबर नहीं आई. एंड शी वॉज गेटिंग रेस्टलेस. वो उनको देखती है कि वो आ गए हैं, बट उनके फेस से उन्हें कुछ डर महसूस हो रहा होता है. एंड इवेंचुअली मैसेज डिस्क्लोज किया जाता है, बताया जाता है देयर नो मोर. दोनों ही पेरेंट्स बहुत ज्यादा शैटर्ड होते हैं. एंड आई थिंक वी कैन वेरी वेल इमेजिन दैट मोमेंट फॉर देम. फ्यूनरल हो जाता है और दोनों ही पेरेंट्स अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इज दिस गॉड्स जस्टिस, is this what was it for this day we were doing all the good things. क्योंकि वो बहुत सिंपल लिविंग वाले लोग होते हैं, अच्छा सोचना, अच्छा करना, दूसरों की मदद करना, सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं, कभी किसी के काम में दखल नहीं देना, सिंपल गुड पीपल दे वर. तो they started to question the existence of God. अब इसी के बारे में मैं आगे भी आप लोगों से बात करूंगी कि इज दिस द जस्टिस ऑफ गॉड. तो 29 डेज हो जाते हैं, फ्यूनरल हो जाता है, डेथ को 29 डेज हो जाते हैं. एंड दैट्स व्हेन ये इस कपल को किसी एक नेबर के थ्रू सम लिंक मैसेज मिलता है कि एक मीडियम के थ्रू, मीडियम वो लोग होते हैं जो स्पिरिट्स और सोल से कम्युनिकेट करते हैं. तो इस कपल को ये मैसेज मिलता है कि एक मीडियम के थ्रू आपके बच्चों की सोल, द टू बॉयज wants to reach out to you. Vipsi and Ratu had gone to the spirit world, and from there they wanted to send assurance to their shattered parents that we are happy here, we are more happy here, we are comfortable, you need not be grief stricken. तो ये सोल्स को बहुत अफेक्ट करती हैं. हमने अपने कल के सेशन में भी ये बात किया था कि हमें सोल्स को बांध के नहीं रखना चाहिए. तो वो सोल्स, वो these two boys wanted to convey to their parents कि वो हमारे लिए दुखी ना हो, क्योंकि हम लोग अर्थ प्लेन पे जितने खुश थे उनके साथ रहते हुए उससे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड इज आवर ओन रियल होम एंड दिस वाज द गॉड्स प्लान. ये होना ही था. अब ये चीज वो सोल डायरेक्टली अपने मदर फादर को नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे होते, बिकॉज दे डिड नॉट हैव दोस पावर्स. ये साइकिक एबिलिटीज सबके पास नहीं होती कि वो सोल्स को देख सकें या उनसे कम्युनिकेट कर सकें, उनके मैसेजेस ले सकें. तो मीडियम्स की हेल्प से इस मीडियम के थ्रू जब उन्हें ये मैसेज मिलता है तो ये पेरेंट्स रीच आउट करते हैं उस मीडियम को कि हाँ, किसी को भी मिलेगा तो वो कोशिश करेगा कि हम बात करें. अगर ये सोल हमसे बात करना चाहती है, इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है किसी के लिए, जिसके लिए आप रो रहे हो, वो आपके लिए फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है, मर चुका है, फिर भी आप उससे बात कर पाओ. तो ये दोनों पहुंच जाते हैं मिसेस कपाडिया जो मीडियम होते हैं उनके पास, टू कम्युनिकेट विद देयर, टू टॉक, टू गेट इन टच विद देयर चिल्ड्रन वंस अगेन. वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. मिसेस कपाडिया बहुत फेमस मीडियम थी. उनके पास ना केवल ये दोनों, बहुत सारे और लोग आए हुए थे जो अपने डिपार्टेड सोल्स, अपने लव्ड वन से कम्युनिकेट करते थे, मैसेजेस लेने आए होते थे. तो मतलब वो ये काम बहुत लोगों के लिए कर रही थी आउट ऑफ सर्विस. शी वाज मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर टू पास द मैसेज. एंड व्हेन शी वाज स्टेपिंग टू ईच वन, टुवर्ड्स ईच वन ऑफ देम, जो सोल उन कम्युनिकेट करना चाहती थी, वो सोल, दैट सोल यूज्ड टू स्पीक थ्रू मिसेस कपाडिया एज अ मीडियम. जब टर्न आई रूमी और खुर्शीद की, what words that lady, that medium spoke, actually the soul of Vipsi spoke through Mrs. Kapadia, that medium, and the words were,
हेलो मम्मी फैट्सो। हम सबके कुछ निकनेम्स होते हैं ना, और वो हमारे बहुत लव्ड वंस को, बिल्कुल क्लोज फैमिली मेंबर्स को ही पता होते हैं। तो ऐसे ही विप्सी अपनी मम्मा को हमेशा फैट्सो बोलता था। एंड ये नाम किसी थर्ड पर्सन को पता हो ही नहीं सकता था। एंड मिसेस कपाडिया वाज इन नो वे कनेक्टेड टू दिस फैमिली कि उन्हें ये नाम पता हो या उन्होंने कभी भी सुना भी हो। किसी को भी नहीं पता था. So this word in itself gave her and her husband an assurance that this is the soul of Vipsy speaking. They got the assurance. और उस सोल ने अपने पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट किया कि हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं. They contacted another medium जो उनसे 101 इंटरैक्ट करे. एंड इन दो सेशंस उन्हें ये बताया गया कि हमारा ये सोल प्लान है that we as children had to leave at this age and you had to stay behind, not to grieve, not to cry over our death, but to do a job of service, to do to be of service to the mankind. And what is that service? To write this book about which I'm going to talk to you about today. तो ये दोनों सोल्स स्पिरिट बनने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड से रियल लॉज ऑफ गॉड अपनी मदर को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड ऑटोमेटिक राइटिंग. दिस इज अगेन वन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू टू नो. ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे होती है? People who have psychic abilities, they develop these powers when they meditate extremely hard. एक्सट्रीम मेडिटेशन में आने के बाद उनके पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं दैट व्हेन दे होल्ड पेन एंड दे जस्ट पुट इट ऑन द पेपर, द हैंड स्टार्ट्स टू मूव ऑटोमेटिकली. एंड व्हाटएवर कम्स आउट, इनिशियली वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं बनते, बट द पर्सन हु इज राइटिंग कैन स्टिल रीड इट, कैन स्टिल मेक सम सेंस आउट ऑफ इट, एंड इवेंचुअली विद प्रैक्टिस वो पूरे वर्ड्स बनने लग जाते हैं. So entire book is written through automatic writing, and whatever message the souls have given to this lady, they have been put into this words, into words in the form of this book. So why I have given you this backdrop of the book? Usually हम books के बारे में बात करते हैं तो books के content के बारे में बात करते हैं, but मैंने सोचा कि ये बात आपको बताना जरूरी है to make you understand कि आपने आज तक जो laws of God के बारे में सुना होगा, वो सुना होगा डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू. इट्स लाइक चाइनीज विस्पर. आप एक जने को कुछ बताते हैं, दूसरे मेंबर को कुछ बताते हैं, वो जो आपने सेंटेंस बोला होता है वो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो चुका होता है, फिल्टर्ड होता है, बदल चुका होता है, मॉडिफाइड हो चुका होता है. बट ये बुक जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स आई है, फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड आई है, फ्रॉम द हाई सोल्स. द गॉड हैज ट्राइड टू सेंड दिस मैसेज. गॉड हैज अग्रीड that this kind of book should reach the mankind, and that is why this is so powerful. It is immensely liberating, friends. I just cannot tell you how it has changed my life. And it may sound a little weird, but I have read it many a times, not even once. I've read it many a times. Every time I read it gives me some liberating feeling. Now I'm going to tell you a little about what real laws of God are. But to give you more insight, I will have more sessions on this because there's so many things that I'm sure you will be interested in knowing. But eventually, to reap the best benefits, it is recommended that you read this book. Now, the real laws of God are what? चिल्ड्रन, ये विप्सी एंड रातू बताते हैं अपने पेरेंट्स को, जब खुद खुर्शद भावनागरी जी ये साइकिक एबिलिटीज डेवलप कर लेती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिट्स हेल्पिंग हर फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड. सी ये गार्जियन एंजल, ये स्पिरिट वर्ल्ड से जो आपको स्पिरिट्स हेल्प कर रही हैं, दे हैव द पावर्स. ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं. वो बच्चे होने के बावजूद अब अपने माँ बाप का फिजिकली प्रेजेंट ना होते हुए भी ख्याल रख रहे थे, अश्योरेंस दे रहे थे, उन्हें गाइडेंस दे रहे थे कि ये बुक कैसे लिखी जानी है, मैसेजेस दे रहे थे, और उनको अपनी साइकिक एबिलिटीज डेवलप करने में हेल्प कर रहे थे. This is when Vipsi and Ratu tells their mother that you need to develop these abilities so that the mankind gets to know. This is God's plan, that the mankind needs to know the real thing. God wants that we should be aware so that we make less mistakes, because in ignorance we people are making mistakes. So this was the God's plan, a larger plan.
So this book is created with that intention, and if it has reached me, if it has reached so many people, and if it is reaching you today, the God wants us to know these laws, filtered laws, unaffected, unchanged laws, unaltered laws. Now, what is God's justice is what I'm going to give you an insight about today. Just a part of from the book, portion from the book. Now, बहुत बार हम लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि जो लोग बुरे हैं, इस बुक में उनको गुड सोल, इविल सोल, बैड सोल्स ऐसे करके टर्म किया गया है. नाउ जो इविल सोल्स हैं, जब जो बैड सोल्स हैं, जो भी आप कह लीजिए, वो बुरा करते हैं इस अर्थ प्लेन पे, पर भी बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत पैसा होते हैं उनके पास, और बहुत लैविश लाइफ जी पाते हैं. अंदर से चाहे वो बिल्कुल अच्छे ना हो, पर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती हम लोगों को. जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े काइंड हार्टेड होते हैं, बड़े जेन्युइन होते हैं, पर भी उनकी लाइफ में हर आए दिन कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती रहती हैं. और ऐसे में कभी कभी हमारे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा होता है. तो ऐसे में हम लोगों के मन में ये क्वेश्चन आना बड़ा लाजमी है कि इज दिस गॉड्स जस्टिस. जैसे खुर्शीद के मन में आया कि मैंने अगर आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान ने मुझसे मेरे 2 बच्चे छीन लिए, वो भी इस एज में, और हमको अकेला छोड़ दिया. तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे मन में भी आते हैं कि गॉड्स जस्टिस क्या है. क्या ये गॉड की जस्टिस है कि जो अच्छे लोग हैं वो सफर करें अर्थ पे, और जो बुरे लोग हैं वो पैसा कमाएं और बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, या ये सब. तो फ्रेंड्स, this book gives us clarity that we should never ever doubt God's justice. Why? Because God doesn't need any proof to uh, to tell whether you are a good soul or a bad soul. तो गॉड से आप कुछ नहीं छुपा सकते. आप अपने अंदर क्या है, आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर से भी छुपा सकते हो, अपने फ्रेंड्स से भी छुपा सकते हो. आपके अंदर क्या है, जब तक आप बोलोगे नहीं वैसे वर्ड्स, हंस के बात करोगे, बड़े खुश खुश रहोगे, हेल्प करोगे, आगे से कभी किसी के साथ बुरा नहीं बोलोगे, तो अंदर आप चाहे किसी के लिए कितना भी बुरा सोच रहे हो, वो इंसान नहीं जान पाएगा आपको. बट आपको क्या लगता है कि भगवान वो अंदर वाली बातों को नहीं जानता? वो तो सब कुछ जानता है. तो फिर हम कैसे डाउट करते हैं कि गॉड्स जस्टिस, how do we question God's justice? God doesn't need any proof. In fact, according to books, they say कि हमारे हर एक डीड, हमारा हर एक थॉट, हमारी हर एक फीलिंग एंड इमोशन जो हम दूसरों के लिए रखते हैं, अपने लिए रखते हैं, all of that gets recorded in the is there in the Akashic records. हमारी एनर्जी बॉडी में वो कर्मास, हमारे हमारे सारे डीड्स, इमोशन सब स्टोर होते रहते हैं. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है. And all these things only make arrangements for the payback of karma and all of that. तो कुछ भी छुप तो सकता ही नहीं है. हम अपने चेहरे के पीछे चाहे कितना कितना मर्जी चीजों को छुपाने की कोशिश करें, अपने आप को सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करें, पर जो जो कमियां हैं भगवान से हम नहीं छुपा सकते. अगर हमने एक भी गलती की है अपने लाइफ टाइम में और पूरी लाइफ टाइम अच्छी बिताई है, तो वो एक का भी रिकॉर्ड तो जरूर है. Then why question? The fact is that friends, कि हम अर्थ प्लेन पे आते हैं, और ये फैक्ट है कि जो गुड सोल्स होती हैं, बहुत गुड सोल्स होती हैं, उनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स भी आती हैं. इट्स बिकॉज हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्पिरिट वर्ल्ड हमारा रियल होम है, और हम यहाँ आए हैं फॉर टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ आवर सोल. तो ये दिस इज नॉट अ लेजर वॉक फॉर विच वी हैव कम हियर. किसी ना किसी पर्पस से आए हैं. एंड आप कुछ भी, कोई डिग्री भी अचीव करनी होती है, आपको एग्जाम देना पड़ता है ना उसके लिए. तो आप अगर सोल के लेवल पे एक लर्निंग अचीव करना चाहते हो, एक लेसन लर्न करना चाहते हो, यू डेफिनेटली विल हैव टू गो थ्रू सर्टेन हार्डशिप, सर्टेन टेस्ट्स एंड ट्रेनिंग्स. अगर आपको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो आपकी सोल को मान लो फॉरगिवनेस का लेसन लर्न करना है, तो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे सिचुएशंस डेफिनेटली टेस्ट और ट्रेनिंग के रूप में आएंगी. जब आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि लोग आपको हर्ट करेंगे बार बार, पर आपको फॉरगिव करना होगा. जब तक आप फॉरगिव नहीं करना सीखेंगे, तब तक आपकी वो टेस्टिंग ट्रेनिंग चलती ही रहेगी. तो ये डिफिकल्टीज आर फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सोल. इनका सफरिंग का पेन से कोई रिलेशन नहीं है.
उसका रिलेशन है टेस्टिंग और ट्रेनिंग से। तो हमें जब भी किसी, जैसे हम लोग सुनते ही आए हैं कितने टाइम हमेशा से कि सोना तप तप के उभरता है, कोयले की माइन से हमारे डायमंड्स निकलते हैं। तो मतलब तो सब बातों का एक ही है कि हमें जब तक हम लोग डिफिकल्टीज फेस नहीं करेंगे, हमने लाइफ में बुरा नहीं देखा होगा, तब तक हमारी पर्सनालिटी निखर ही नहीं सकती। और अगर हमारी इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनालिटी नहीं निखर सकती, तो आप सोचिए सोल लेवल पे एवोल्यूशन कैसे होगा बिना टफ टफ कंडीशन के। तो दिस इज ऑल लर्निंग। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं है गॉड की तरफ से, दिस इज द लेवल दैट ईच सोल हैज टू अंडरगो। हर एक सोल को टेस्टिंग ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बट मान लीजिए उसके बावजूद भी कुछ इविल सोल्स होती हैं जो अपने फ्री विल से गलत काम करती हैं हमेशा लाइफ में, इवन गुड सोल्स को भी हार्म करती हैं। फिर भी उनकी अर्ली लाइफ बहुत प्लेजरेबल होती है, बहुत फुल ऑफ लग्जरीज होती है, मजे में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पैसा उड़ाते हैं, ये सब करते हैं वो लोग। मटेरियल लाइफ उनकी बहुत अच्छी होती है। बट फ्रेंड्स, हमें अब ये भी पता है कि हमारा स्टे अर्थ पे इज वेरी शॉर्ट, इट्स जस्ट अ लाइफ टाइम। एंड अब आप ये बात भी जान चुके हैं कि हम कितने 500-600 लाइफ टाइम्स जीते हैं। तो ये एक छोटा सा लाइफ टाइम है उन 600 लाइफ टाइम्स में से। तो ये स्टे बहुत छोटा है। आप कितने मर्जी बुरे काम कर लीजिए और दुनिया को अपना अच्छा चेहरा दिखा लीजिए, वापस तो जाना आपको अपने ही घर है, स्पिरिट वर्ल्ड में ही है। वहां पे जाके सब हिसाब किताब हो जाएगा। तो वहां पे जो आपको एजेस एंड ईयर्स की सफरिंग अंडरगो करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, और अपना लेसन लर्न करने के लिए अपने कर्मास को पे बैक करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी सी लाइफ टाइम में आपने बहुत मजे किए, बट ये जितना लोगों को हार्म किया, जितना दूसरों का बुरा किया, सोचा, किसी की हेल्प नहीं करी, जब आप करने के काबिल थे। भगवान आपको पैसा देता है तो इसीलिए देता है, अगर आपको किसी तरह की सद्बुद्धि देता है, किसी अच्छे मार्ग पे डालता है, आपको कोई कोई भी सोर्स, किसी भी तरह के रिसोर्सेज आपके पास अबंडेंस में है, तो दे आर नॉट देयर कि आप अपना ही पेट भरते रहिए। सर्विस करिए। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो उसका आपको पेबैक करना पड़ेगा स्पिरिट वर्ल्ड में जाके। एंड दीज इविल सोल्स फॉल so down, they fall so low in the realms when they go back to the spirit world कि वहां पे उनकी suffering immense होती है and with very less scope of any improvement. Friends, here I would like to tell you that as we were talking about in the last few days, that 7 number has a great significance. So here, when we go back to the realms, when we go back to the spirit world, वहां पे भी 7 realms हैं. Number 1 is the lowest realm and number 7 is the highest realm. हमारी सोल की इवोल्यूशन के हिसाब से हम कौन से लेवल, कौन से realm में जाते हैं, ये डिपेंड करता है। और जो सोल्स बहुत इविल होती हैं, एक्सट्रीमली इविल होती हैं, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया होता है, वो रेल्म 1 में जाती हैं। और रेल्म 1 एक बहुत ही स्कैरी रेल्म है। मतलब सबसे बुरा जो भी आप सोच सकते हैं, वहां वैसी कंडीशंस होती हैं, डार्क होता है, वहां पे लाइट नहीं होती, वहां पे आपकी फिजिकल बॉडी डिफॉर्म्ड होती है, अगली लुकिंग होती है। आप अगर कोई बहुत इविल इंसान है, यहाँ बहुत ब्यूटीफुल होगा, अच्छी ग्लोइंग स्किन होगी उसकी और बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता होगा, बट जैसे ही उसकी डेथ होगी वो जाएगा कहाँ, रेल्म 1 में। और वहां उसको कितना सफर करना है ये उसकी सोल जानती है। सबकॉन्शियस लेवल पे हमें सब पता होता है। एंड दैट पर्सन विल लैंड अप देयर ओनली। वो रेल्म 5, 6, 7 में नहीं जा सकता क्योंकि उसने वैसे कर्म ही नहीं किया। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको वही डायरेक्ट करेगा रेल्म 1 में, चाहे पैसा कितना भी हो, वो सब यहीं छूट जाने वाला है। तो ये रेल्म्स का भी एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती है आपको ये बुक। तो गॉडली वेज क्या है, अगर आप सोचते हैं कि अब हमारे गॉड की जस्टिस पे आप डाउट करते हैं, देन दिस बुक गिव्स यू क्लैरिटी दैट यू शुड नेवर एवर लुक एट अ पर्सन who's an evil soul and harming others। और आपको पता है कि ये इंसान बुरा कर रहा है, तो उसके लिए आप पिटी का भाव रखिए, आप उसके लिए बुरा फील करिए और गॉड से विश करिए कि उसे उसके लिए जो सही है उस वो मार्ग दिखाए, रादर देन ये सोचने कि अरे ये तो इतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, काश मुझे भी ये सब चीजें मिली होती। वो अपने कर्मास को बैलेंस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, और आप अपनी जर्नी पे हैं। सो देयर शुड बी नो कंपैरिजन। और ये नहीं है कि वो यहाँ बुरा कर रहा है और हमेशा से बचता आया है तो वो वापस वो वहां भी बचेगा, वहां कोई नहीं बचा सकता। गॉड्स जस्टिस इज इटर्नल एंड आई मीन इनकम्पैरेबल। So this clarity comes from the book. Uh,
जो बहुत इविल सोल्स होते हैं रेल्म 1 वाले कैटेगरी की, रेल्म 1 में आपकी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है क्योंकि वहां सभी इविल सोल्स हैं। अदर रेल्म में, हायर रेल्म में आपके पास इविल सोल्स के साथ कुछ गुड सोल्स भी होते हैं जो आपको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करती हैं, आपको हेल्प मिलती है गॉड से। बट रेल्म 1 कंप्लीटली ब्लैक डार्क और रेल्म है जहाँ पे आपको प्रोग्रेस करने में, आपकी एवोल्यूशन में बहुत बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। वहां पे अगर कोई इविल सोल रियलाइज करती है, रिपेंट करती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने जो भी किया सब गलत किया, नाउ आई वांट टू चेंज, एंड व्हेन दैट डिजायर इज जेन्युइन, फ्रेंड्स, यू विल बी shocked to know that God still listens. The God is just like our parents. हम चाहे कितनी मर्जी गलती कर ले, कितनी मर्जी बदतमीजी कर ले, हमें माफी मिल ही जाती है। तो ये इविल सोल्स को भी, चाहे यहाँ मर्डरर, रेपिस्ट कुछ भी रहे हों, इन्हें भी माफी मिल जाती है आफ्टर दे पे बैक देयर कर्मास। तो इन लोगों को वहां पे, क्योंकि उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ये इविल सोल्स फिर बीस्ट ऑफ बर्डन बन के बर्थ लेती हैं, एंड विद क्लियर रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल देयर कर्मास एंड वाई दे आर हियर। तो ये बीस्ट ऑफ बर्डन बन के इनको पूरी मेमोरी होती है कि ये पीछे क्या क्या करके आए हैं और या यहाँ ये क्यों है। तो इनकी पूरी वो लाइफ टाइम ये रिपेंट करते हैं जेन्युइनली, एंड देन देयर इज अ स्कोप ऑफ देम राइजिंग हायर इन द रेल्म्स, एंड फिर दे प्रोग्रेस टुवर्ड्स लाइट, अगर ये सही रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे चलते रहे। So evolution has to happen for each and every soul. There is no soul जो हमेशा ही realm 1 में ही stuck रहेगी, but it takes ages, eons. So there are so many other topics that we can touch upon, but my request to you is, humble request to you is that get hold on to this book, get a hold on this book and do read it. It is really, really empowering. Thank you so much for giving me your attention. Thank you.